Taran is the first one to join today. Very good, Taran. Good progress. Oh, Abhishri. Ma'am. Yes, Taran. You were saying something? Nothing, ma'am. Nothing. Okay, okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Arantya. Ma'am, you know Sundarlal Bahuguna, who started Chipko I know. movement in India, died due He to died COVID. yesterday. I know, beta. So sad. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Arav. Good Same suit, ma'am. your voice also, no? Good afternoon, Ishi. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Vyom. Ma'am, who died? Sundarlal Bahuguna, the person who started the Chipko Andolan, Chipko movement. Okay, ma'am. Ma'am, he was in the age of 92 or 94 or He was 96. 92. He was 92. 92, yeah. He was 92. Ma'am, today only. No, yesterday. Ma'am, what? Sundarlal Bahuguna, the person who initiated the this Chipko movement, he died of COVID yesterday. Maybe age was also one factor that he could not survive this Ma'am, disease. Chipko movement was very earlier, so his age was the main factor. Okay. So this is your last. Good afternoon. This is your last class for the day. What do you want me to do? Though it is a geography period, you want to continue with the beta ये मिष्टी मिश्रा Ma'am, हाँ ma'am, बोलो you can do history. हाँ बस सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हिस्ट्री में ठीक है let us complete that right Yes, ma'am. Yes. Ma'am. If we are left with time I would like to show you one PPT which shows that how the continents were segregated and then how the present day northern plains and everything came into existence, the second chapter that we have done, right? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Fine. So let us share the screen. Where do we have the PPT? Here and share. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, beta. We have maximized the screen. Ma'am, but we were on the next PPT. I know. By mistake, opened the wrong PPT. Share. We completed that woman revolution. I'm coming to that, beta. Going to that only. I think we need to go over here. Open the French Revolution, Prashasti speaking entry. French Revolution part 3, we need to open. Okay. Part 3. Can you see the screen? Can you see the screen? Ma'am, yes, but not the No, ma'am. PPT. Ma'am, we can't see the PPT. Okay. Ma'am, your Wait. I'm sharing the screen again. अब दिखा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Paurush has entered. Abolition of slavery, I explained you. Yes, no, ma'am. No? Yes, ma'am.
I think I was explaining you. I was explaining you this, no? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Abolition of slavery. Acha. See, we all know slavery started in the 17th century between three continents of the world, that is Europe, America, and Africa. Africa being the poorest of the country, slaves were brought, and America had made some parts of Africa as its colony. So most of the slaves were taken from African, coast to various parts of Europe and America. Now, why these slaves were required? These slaves were required because of the plantation that was there in Europe. We all know Europeans were very fond of tea, right? When in India also tea was introduced by the Europeans only, especially the British who came. So to work on the plantation fields, plantations, huge manual labor was required. That is why these slaves were transported from Africa to Europe. I hope this much is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Now, Yes, ma'am. slavery at the time when Robespierre government came into power, that time also there is on the top where this abolition of slavery is written, they have specified about the Jacobians, how these Jacobians, they wanted to abolish slavery, and during the time of Robespierre's rule, slavery was abolished. But when Napoleon came into power, again he reintroduced slavery, and for almost many years slavery was prevalent, and finally in the year 1848 this slavery was completely abolished from the French colonies which were there, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is all about slavery. Now moving on to the revolution and everyday life. Right? Now see, हाँ जी, revolution and everyday life में बेटा इस particular topic में they have simply told you that how when the revolutionary wars started and when the revolution was successful in France, how the laws that were already existing in the country were abolished, and the main law that people wanted to abolish was the censorship. You know what is a censorship? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, tell what is censorship? Ma'am, censorship means that the media or the public cannot comment on the government policies. Ma'am, restriction to that. हाँ, censorship we can say prohibition or suspension or to suppress, right? Ma'am, to prohibit something bad, ma'am. हाँ, And suppression of means thoughts. हाँ, exactly. See, हम जब बच्चे होते हैं तो हम जब बड़े लोग बैठे होते हैं, हम उनके बीच में कुछ बोलना चाहते हैं तो हमको आंख दिखा दी जाती है, कहा जाता है आप बच्चे बड़ों के बीच में ऐसी बातें नहीं करोगे। सेंसरशिप लगा देते हैं हमारे ऊपर, वो लोग लगा देते हैं ना पेरेंट्स हमारे कि नो यू विल नॉट स्पीक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड मैम फिर कोई शैतानी करते हैं मैम तो कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, बट अगर हम सेंसरशिप की बात करते हैं ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, इंडिया में जब कॉलोनियल रूल था या फ्रांस में जब मोनार्की प्रेवलेंट थी या कंजर्वेटिज्म जो था, जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा जो है एम्फेसाइज करता था, उस टाइम पे ये लोग जो थे ये लोगों को सच्ची बात या सही बात कहने से मना करते थे। अगर कोई मोनार्की के अगेंस्ट कुछ कहता था तो उसको कहते थे तुम नहीं बोलोगे ऐसे, या तुम पब्लिक में तुमको नहीं बोलना है, या उसके जो आइडियाज या थॉट्स जो लोग आपस में शेयर करना चाहते थे उसको भी जो उस पे भी सेंसरशिप लगा दी जाती थी, उस पे भी जो है एक फुल स्टॉप लगा दिया जाता था दैट यू आर नॉट सपोज टू से लाइक दिस, or you're not supposed to discuss, or you're not supposed to spread your ideas which criticizes or says anything against the monarchy, right? Got my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like if you talk about the British government, if you talk about the British rule in India, many of the Indian newspapers which were published by many of the eminent
political leaders of the country, they had to face censorship by the British because they were writing against the policies of the government, which highlighted the kind of exploitation that they were doing. So British never wanted that people should be aware of the policies and the exploitation that they were doing. So they had imposed censorship on the printing of the news or ideas or criticism that the Indians were doing of the British policies. तो ये censorship was something which people did not like. भाई हमें अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की इन अ कंट्री, इफ वी आर पार्ट ऑफ अ कंट्री, देन वी शुड बी गिवन द फ्रीडम टू स्पीक. वो अलग बात है कि आप उस चीज पे आप एक प्रतिबंध लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो, सेंसरशिप लगा सकते हो कि हमें कुछ पब्लिकली ऐसा गलत नहीं बोलना है जिससे कि लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं या जो उनकी वो है, हाँ, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, उसको ठेस पहुंचे या उसको चोट लगे. ठीक है, तो हमें हर तरीके का फ्रीडम चाहिए. तो फ्रांस में भी when the revolutionaries came to power, the first thing that they brought into existence was to abolish the law of censorship, right? Yes, ma'am. ठीक है, then second thing, अब रेवोल्यूशन का कैसे पता चल रहा था? बहुत सारी न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी स्प्रेड अप हो रही थी थ्रू आउट द कंट्री साइड, जिसमें कि लोगों को रेवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें उनको बताया जा रहा था कैसे द कंट्री इज चेंजिंग, कैसे मोनार्की से कंट्री हैड बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कैसे कंट्री हैड बिकम अ रिपब्लिक, और रिपब्लिक होने के बाद क्या क्या चीजें वर टू बी गिवन टू द पीपल, किस तरीके की लिबर्टीज उनको मिलने वाली थी, किस तरीके की फ्रीडम वो एक्सरसाइज करने वाले थे, कैसे इक्वालिटी वाज टू बी प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री. इन सब चीजों को थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू बुक्स, थ्रू प्रिंटेड पिक्चर्स पहुंचाया गया. जैसे हमने पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ा है ना, हमने पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ा है, पढ़ा था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Those who were illiterate, they could not read, but they could at least, looking at the pictures, they could analyze, है ना, कि ये क्या चीज बताना चाह रहे हैं. Ma'am, like lotus of Like, Ma'am, lotus of BJP. हाँ, जैसे आप अगर आप देखो, अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं, जब भी कभी इस तरीके की कैंपेनिंग वगैरह होती है गांव देहात में या कंट्री साइड में, जब जाके लोग करते हैं, लीडर्स करते हैं, तो वहां पे पीपल हार्डली नो देम, दे ओनली नो देम कि अच्छा ये मतलब अच्छा, वो कहते हैं अच्छा हमारी पार्टी का क्या चिन्ह है या क्या सिंबल है, तो क्या बोलते हैं कि कौन से उस पे निशान लगाना है आपको, तो वो बताते हैं कमल पे लगाना है. ठीक है, तो उनको पढ़ना नहीं आता है, उन्हें नहीं पता है कि भाई कमल जो है बीजेपी का सिंबल है, उन्हें इतना पता है कि कमल पे अगर हम लगाएंगे तो वो जो फला फला लीडर हमारे पास आया था, हम उसको वोट दे रहे हैं. तो इलिटरेसी से इलिटरेट लोगों से किस तरीके से डील करना है, हाउ टू स्प्रेड आइडियाज टू देम, बहुत सारी तरीके की चीजों, बहुत सारे आइडियाज क्रिएट करे गए, जिसमें कि पिक्चर्स वर समथिंग जो कि उनको लगा कि पीपल कुड इजीली रिलेट टू दीज पिक्चर्स. हम पिक्चर देख के, फोटो देख के आराम से रिलेट कर पाते हैं सेंटिमेंट से, बजाय लिखी हुई चीजों के. Isn't it? Yes, ma'am. हाँ, तो कह रहा है कि जब एवरीडे लाइफ में जो रेवोल्यूशन था उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो इम्पैक्ट ये था कि भाई न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स, फिर लोगों ने अपने आइडियाज, मतलब कि वो क्या, किस तरीके की कंट्री उनको अपने लिए चाहिए, या फ्रांस अगर रिपब्लिक हो गया है तो किस तरीके के आइडियाज, मतलब किस तरीके की कंट्री दे एक्सपेक्ट बाय द गवर्नमेंट, या किस तरीके के आइडियाज या किस तरीके के राइट्स दे वांट. तो उन चीजों को थ्रू प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस, इनके थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करके उनसे उनके थ्रू समझाया जाता था कि भाई ये लिबर्टी का आइडिया क्या है, जस्टिस का आइडिया क्या है. इन सबको स्प्रेड अप किया गया थ्रू प्लेज, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू फेस्टिव प्रोसेशंस. ठीक है, अब इनके थ्रू क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों से पे अट्रैक्ट होते थे, वो देखते थे, वो सुनने आते थे. जैसे गांधी जी जो थे, जब वो देश के भ्रमण के लिए निकले, हम जब गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, गांधी नेरा के बारे में पढ़ते हैं इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो हमने, गांधी जी ने कभी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करा, कभी उन्होंने बुक्स नहीं लिखी या किताबें नहीं लिखी कि लोगों को वो एजुकेट करें किताबों के थ्रू. वो हमेशा लोगों के बीच में जाते थे, उनसे बातें करते थे, और जिस लैंग्वेज को वो लोग समझ पाते थे इजीली, उस लैंग्वेज के थ्रू वो अपने आइडियाज उनसे शेयर करते थे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
Yes, ma'am. Fine. Ma'am, in the easiest way. इन द इजिएस्ट वे, एग्जैक्टली। एक छोटे बच्चे को अगर हमें कुछ कोई चीज को समझाना होता है, उसको दिखाना होता है, तो हम सबसे पहले पिक्टोरियल डिपिक्शन दिखाते हैं उसको, उसके बाद में उसे हम पढ़ाते हैं या लिखाते हैं। पहले हम पिक्चर्स से उसको एक्वेंट करवाते हैं और पिक्चर्स के थ्रू चीजें उसको समझाते हैं, इजंट इट? Yes, ma'am. हाँ, फाइन। Yes. ठीक है, अब ये रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. Yes, ma'am. Now coming to the last topic of the chapter, that is rise of Napoleon Bonaparte. अब नेपोलियन जो थे, डायरेक्टरी हमने पढ़ा कि किस तरीके से डायरेक्टरी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। डायरेक्टरी के जो आपके जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो हमेशा जो है लेजिस्लेचर से उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था, किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होती ही रहती थी क्रिएट। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, मतलब ये जो नेपोलियन थे, ही वॉज इन मिलिट्री। इसने सिचुएशंस को एनालाइज करा और इसने क्या करा, धीरे धीरे अपने आप को जो है लोगों के बीच में लेके गया और वहां पे जाके उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और अल्टीमेटली वन फाइन डे he crowned himself as the emperor of France in the year 1804। और जब उसने अपने आप को क्राउन करा एज एम्परर ऑफ द फ्रांस, पीपल वर वेरी हैप्पी बिकॉज वो जिस आइडियोलॉजी के थ्रू या जिन आइडियाज को वो इनकलकेट करना चाहता था इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, वो ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। और लोगों को बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि भाई नेपोलियन जैसा एक इंसान हमारे पास आ गया है हमें रूल करने के लिए। पीपल लुक्ड एट हिम एज अ लिबरेटर एंड मॉडर्नाइजर। क्यों मॉडर्नाइजर, क्यों और लिबरेटर? But he restarted the slavery system. स्लेवरी को अगर आप अपार्ट फ्रॉम स्लेवरी अगर आप देखो, बहुत सारे जो है उसने वो करे थे, रिफॉर्म्स लेके आया था वो, विच हेल्प्ड पीपल टू कम्युनिकेट, टू ट्रांसपोर्ट, टू ट्रेड। हमने भी आपको बताया था ना सुबह वाली क्लास में कि किस तरीके से उन्होंने वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करा था, बताया था क्लास में। Yes, ma'am. हाँ, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को रिस्ट्रिक्ट करती थी इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। तो उन्होंने, नेपोलियन ने इन चीजों में बहुत ज्यादा जो है लिबरलाइजेशन लेके आया वो। जैसे आज हम वर्ल्ड में ट्रेड करते हैं, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी तो है कि नहीं? Yes. ये Yes, सेम, ma'am. हाँ, ये सेम चीज नेपोलियन ने भी शुरू करी थी व्हेन ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। उसने विद इन फ्रांस जो टेरिटरीज थी आपस में वो ट्रेड कर सकें, उसके लिए सारे वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करा। फिर उसने जो करेंसी का जो वो था, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज थी, जैसे अगर आप एक बॉर्डर आपने क्रॉस करा तो आपको जो अमाउंट ऑफ करेंसी देना होता था, उस करेंसी को उसने कंप्लीटली खत्म कर दिया। जैसे 30 करेंसीज, एक बार अगर आप कोई एक बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपको 30 करेंसीज का जो है एक्सचेंज करना पड़ता था। तो उस 30 करेंसी के अमाउंट को उसने केवल 2 करेंसीज पे लाके छोड़ दिया। तो एक इंसान अगर ट्रेड करना चाहता है इनटू 5 और 6 टेरिटरीज, तो बिना ज्यादा पैसे खर्च करे वो आराम से ट्रेड कर सकता था। जहां उसे पहले 30 करेंसीज देनी पड़ती थी, अब उसको केवल 2 करेंसीज देनी पड़ रही है। तो उसको लगता था ये घाटे का सौदा नहीं है, इट इज अ बेनिफिशियल दिस थिंग कि भाई आइडिया कि अगर हम दो करेंसीज करके भी अगर 5 या 6 प्लेसेस में हम ट्रेड कर पाते हैं तो दैट मींस ओनली 12 करेंसीज विल बी स्पेंडिंग, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस वाज ऑल अबाउट नेपोलियन। अच्छा, दूसरी चीज और, विद इन फ्रांस जो लोग थे उनके लिए उसने बहुत सारे जो है प्रोविजंस, रिफॉर्म्स लेके आया वो। सबसे पहला रिफॉर्म उसने क्या करा कि उसने लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का राइट दे दिया, विच वॉज नॉट गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोनार्की। उनके पास, लोगों के पास ये राइट बिल्कुल नहीं था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सके। पर नेपोलियन ने कहा कि नहीं, जो इंसान जो एक कंट्री में रहता है उसको पूरा पूरा अधिकार है, अभी अभी उसे पूरा पूरा अधिकार है कि वो उस जगह पे अपने लिए एक प्रॉपर्टी भी खरीद के रह सके, ताकि वो कल को ये क्लेम कर सके कि हाँ मैं इस कंट्री का पार्ट हूँ। तो व्हेन ही ब्रॉट दिस रिफॉर्म, लोगों को बहुत खुशी हुई। पहले उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कहने को कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी है। दूसरा, उसने जो है वोटिंग राइट्स सब लोगों को दे दिए। ठीक है, जो वोटिंग राइट्स केवल कन्फाइंड थे टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, अब वो सबको मिल गए। विमेन को ऑफ कोर्स ही डिड नॉट गिव देम वोटिंग राइट्स, उसके लिए उनको और जो विमेन थी ऑफ द कंट्री थी उनको और स्ट्रगल करना पड़ा। एंड एज आई टोल्ड यू कि 1946 में विमेन गॉट द राइट टू वोट। ठीक है,
Yes, ma'am. राइट क्लास? अब शुरू Yes, में ma'am. शुरू में जब नेपोलियन आया रूल करने के लिए, पीपल वर वेरी हैप्पी, बट धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि दैट नेपोलियन वाज वेरी एम्बिशियस, he was continuously conquering territories, and in those conquered territories he was bounding, like he was bounding people to what do you call he was bounding people to from Meant to accept the French, control. मैम मतलब No, that was that. नो मैम मतलब मैम नेपोलियन शायद से उन्हें ये जबरदस्ती कर रहा था ताकि वो फ्रांस के रीति रिवाज को अपना ले, जैसे जर्मनी में कुछ अलग होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज तो है ही है, पर उसने एक काम और क्या करा, वो फोर्स रिक्रूटमेंट करता था, जबरदस्ती लोगों को फौज में लेके आता था अपनी कॉन्कर्ड टेरिटरीज में से। वो उसने लोगों को ये बोला कि आप जो है चाहे कुछ हो जाए, मुझे हर परिवार से एक बच्चा फौज में चाहिए। ही वांटेड अ ह्यूज आर्मी बिकॉज उसका सपना क्या था, ही वांटेड टू कॉन्कर दी वर्ल्ड। वो चाहता था कि मैं पूरे कंट्रीज को अपने अंदर कर लूं, तो उसके लिए उसको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी। ठीक है, अब उस बड़ी आर्मी को रखने के लिए उसने क्या करा, जबरदस्ती हर फैमिली से एक इंसान जो है वो रिक्रूट करा अपनी आर्मी में। तो कुछ लोग इस बात से नाखुश थे, तो इनिशियली तो पीपल वर वेरी हैप्पी, बट धीरे धीरे जब व्हेन दे गॉट टू नो द एम्बिशन ऑफ नेपोलियन, दे फेल्ट वेरी बैड। दे सेड दैट ही इज आल्सो लाइक एनी अदर रूलर, कि जबरदस्ती हर काम करवा रहा है, प्लस जो भी कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी उसमें वो बाकी लोगों को किसी को कोई अधिकार नहीं देता था। वो क्या करता था, अपने रिलेटिव्स लोगों को उन कॉन्कर्ड टेरिटरीज के कंट्रोलिंग के लिए लगा देता था, राइट? Ma'am, so this is a good point about Napoleon. This was not a good point. This is what I am saying. No, people did not like this idea of his. Initially they were very happy when he brought the reforms, but lately they realized कि whatever provisions he has made, those provisions are actually for his close ones, the relatives that he had. But of course, the reforms part that he did, the permission that he gave to have private property, all these provisions helped people in long run. They were very happy with this. Right? Ma'am, ma'am, as Israel also have this rule that one should be an army from one family. बेटा इजराइल की कंडीशन तो और है ना बेटा। मैम for Israel this is good, ma'am, because it is, ma'am, surrounded by, ma'am, Arabian countries which fall into war, ma'am, very frequently. हाँ, वो तो देखो, वो कंडीशन, वो ये वाला जो सिनेरियो, ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट अस कंप्लीट द चैप्टर। हमारा फोकस आज चैप्टर कंप्लीट करने पे है, ठीक है? फ्रांस की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी, डिफेंस पार्ट। हाँ बिल्कुल बेटा, नेपोलियन ने अपने टाइम में मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है? यस मैम। हाँ चलिए मैम, आई हैव 2 डाउट मैम। यस बेटा, पूछो पौरुष। मैम ऑन पेज नंबर 22, मैम आई कांट अंडरस्टैंड दिस पिक्चर मैम, कैन यू एक्सप्लेन दिस पिक्चर? पेज नंबर मैम 22। ओके, पिक्चर क्या कह रही है हमसे? ये द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। यस मैम। अच्छा, Ma'am, aristocracy is being hung or beheaded. नहीं, रुक जाओ, अभी बता रहे हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जब पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई, एक मॉकरी टाइप का है कि भाई हर किसी को अधिकार है अपने तरीके से जीने का। तो ये हुआ कि भाई अगर हम पतले होना चाहते हैं तो हम इस तरीके की कोई प्रोविजन लेके आएंगे कि हम पतले हो जाएं।
इसमें लिखा है द इनोनिमस प्रिंट ऑफ 1790 सीक्स टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड, या कोई चीज जो डेफिनेट होती है, या जो वेग नहीं होती है, या एल्यूसिव नहीं होती है ओके मैम। ना। तो वो, तो उसमें इसमें से भी बताया कि भाई हर किसी को, अगर हम मोटे हैं, हम पतला होना चाहते हैं, तो हम पतला हो सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आप पतले नहीं हो सकते हो, या मतलब कोई कैटेगराइजेशन नहीं है इसके अंदर। ये मॉकरी टाइप का है बेटा ये, क्योंकि उस टाइम पे पीपल वर टॉकिंग अबाउट राइट्स एंड एवरीथिंग। तो इसलिए इसने जो है इस तरीके का ये प्रिंट, ये पेंटिंग बनाया है। ठीक है। Okay, ma'am. And ma'am, the one more picture on page number 23, ma'am, the upper picture. Okay, this is what you have learned about merit in this chapter. Discovery still around him. Just a second, now. Yes, ma'am. अच्छा, दे आर टॉकिंग अबाउट द फिलोसोफर। ये मेरिट जो है, ही वाज वन ऑफ द फिलोसोफर्स। ये रेवोल्यूशनरीज के टाइम पे था, फ्रांस का, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ही वाज देयर। और इसने क्या करा था, ये जो आपका ये थे, व्हाट डू यू कॉल, जैसे जेन जेके लोकस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो ये भी एक Yes, ma'am. हाँ, ये फ्रेंच पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था ये भी एक। ठीक है, फिजिशियन एंड साइंटिस्ट। Okay, ma'am. तो इसने भी अपने आइडियाज, Okay. जैसे बाकी लोगों ने अपने आइडियाज को स्प्रेड अप करा, इसने भी अपने आइडियाज वगैरह को स्प्रेड अप करा, और लोग उसको सुनने आते थे। उसकी मतलब उससे पीपल सम यूज्ड टू अग्री, सम यूज्ड टू डिसएग्री। ठीक है। Okay, ma'am. एनीथिंग एल्स? No, ma'am. अब जो भी सिस्टम नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करा throughout France, throughout Europe, people were also scared because the way he was continuing his voyage of conquering various territories of Europe. जो बाकी कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया हुआ, फिर आपका रशिया हुआ, फिर आपका ब्रिटेन हुआ, आपका हंगरी हुआ, ये कंट्रीज जो है थोड़ा परेशान हो गई। इनको लगा कि अगर इस तरह से नेपोलियन कॉन्कर करते रहेगा तो हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रिया भी बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्री थी, रूसिया भी अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्री थी एट दैट टाइम। तो इन लोगों ने मिलके क्या करा, इन लोगों ने मिलके अपने आप को एक साथ ऑर्गेनाइज करा, ऑस्ट्रिया ने, प्रूशिया ने, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इन्होंने, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने नेपोलियन के अगेंस्ट जो है वॉर बैटल जो है डिक्लेयर कर दी। और फाइनली बहुत सारे कॉन्करिंग करने के बाद जो नेपोलियन है आपका 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट हुआ। और डिफीट होने के बाद लोग नहीं चाहते थे, दीज पीपल नेवर वांटेड, ये लोग जो थे ये डेमोक्रेट्स थे, ये लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते, सॉरी दे वर कंजर्वेटिव्स, ये लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नेपोलियन वापस से आ जाए। तो उन्होंने क्या करा, ये एंश्योर होने के लिए कि भाई ही डज नॉट रिटर्न बैक, उन्होंने उसे एक बहुत ही आइसोलेटेड से आइलैंड पे भेज दिया था। शायद उस आइलैंड का नाम था सेंट हेलेना करके कोई आइलैंड था। ठीक है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट उसको इतने ज्यादा मैम he was left alone. हाँ, he was left alone, left completely alone, though he had people who were looking after him, खाना बना के देना, सब कुछ करना, but then he was not allowed to come out of that area, that house where he was living. Okay. ठीक है, so this was all about Napoleon. Then And the island was Saint Helena. हाँ, ऐसी कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, सेंट हेलेना। हाँ, completely isolated island Ma'am, था। so why did Prussia and Ma'am, that was the Germany island of allies not Elba. kill? हाँ, why ये सक्षम? Ma'am, so why did not Austria, Prussia, ma'am, these allies killed Napoleon Bonaparte? बेटा उसे मार देते तो देखो ऐसा होता है ना, हम किसी को तभी मारते हैं जब उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं होती है। वो इतना पॉपुलर था, लोग उसको इतना पसंद, विद इन फ्रांस तो पीपल
appreciated him for his reforms. वो अलग बात है कि जिन टेरिटरीज को उसने कॉन्कर करा था वहां पे पीपल वर नॉट हैप्पी विद हिम, है ना, बट उसने जो लोगों के लिए करा, उसने फ्यूडल ड्यूज बहुत सारे, मतलब बहुत सारे प्रोविजंस करे उसने, फ्यूडल ड्यूज खत्म कर दिए, जो फ्यूडल सिस्टम था, जो लैंडलॉर्ड्स वाला सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम जैसे इंडिया में था वैसे ही यूरोप में भी प्रिविलेंट था। हमने आपको बताया था ना, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, नोबैलिटी वगैरह वाले जो थे, ये Yes, सारे ma'am. ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ये नोबैलिटी, ये मैन्योरिज्म, मैन्योरियल ड्यूज, फ्यूडल सिस्टम, ये सब खत्म कर दिया था उसने। तो पीपल वर वेरी हैप्पी, थर्ड एस्टेट के लोग तो बहुत खुश थे उससे। फिर अल्टीमेटली जब रिपब्लिक बना फ्रांस, तो सब लोगों को जो है लिबर्टी, राइट्स मिल गए भाई, इक्वालिटी मिल गई, लिबर्टी मिल गई, फ्रीडम मिल गई, फ्रेटर्निटी प्रैक्टिस होने लगी। तो और लोगों को क्या चाहिए था? नेपोलियन ने विद इन फ्रांस तो कुछ ऐसा नहीं करा था, बट आउटसाइड फ्रांस जो टेरिटरीज कॉन्कर करे थे उनमें बहुत सारे चेंजेस वो लेके आया। तो वहां के लोग खुश नहीं थे उससे, बट फ्रांस के लोग तो बहुत हैप्पी थे। तो अब अगर आप उनके किसी, अब आप उसके उनके रूलर को मार दोगे तो भाई सीधी सी बात है, दे विल आल्सो रिटेलिएट। और वो फ्रांस से जो है उस समय, एटलीस्ट उस टाइम पे, दीज पीपल वर नॉट रेडी टू टेक दिस काइंड ऑफ एनिमिटी फ्रॉम फ्रांस। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है, उसको हरा के उसको भेज दो आइलैंड पे, ना वो बाहर निकल पाएगा ना कुछ, अपने आप ही मर जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am, so what happened after Ma'am, Napoleon was he died. evicted? No, he was not. No, ma'am. He could not evict himself. He died. मैम इसके बाद फ्रांस का क्या हुआ मैम? तब इसके इलेक्शन बाद फ्रांस नहीं बेटा, इसके बाद देखो नेपोलियन जब नेपोलियन मर गया उसके बाद पूरे यूरोप में, वैसे भी जैसे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक तरीके से एक लेसन, एक लेगेसी छोड़ी लोगों के लिए। लेगेसी क्या थी? वो लिबर्टी की, फ्रीडम की। पूरे यूरोप में आप देखो, पूरे ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में, अगर नहीं वर्ल्ड में तो खैर नहीं, पूरे यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो पूरे यूरोप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप दे वर रूल्ड बाय सम ऑफ द अदर किंगडम्स। अगर हम बात करते हैं आज के प्रेजेंट टर्की की, ये जो टर्की था ओटोमन एम्पायर था उस टाइम पे, तो इस टर्की ने ओटोमन एम्पायर के नाते इन्होंने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करा हुआ था। इटली हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब कंट्रीज जो है अपने आप में यूनिफाइड कंट्रीज नहीं थे, इन सब के कुछ कुछ पार्ट्स जो थे अलग अलग रूलर्स के अंडर थे। तो जब फ्रांस एक कंट्री बना और लोगों को जब सिटीजनशिप मिला, लोगों को राइट्स मिले, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज बहुत इंस्पायर हुई इस चीज से। उन्हें लगा कि भाई फ्रांस जैसी कंट्री जहां का राजा इतना स्ट्रांग हुआ करता था, ये कंट्री अपने आप में इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, व्हेन पीपल रिवोल्टेड, जब रेवोल्यूशन हुआ तो उनको एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट मिला। कंट्री जो होती है ना, कंट्री जिसको हम बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मिला कि भाई नेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक कॉमन आइडेंटिटी रखने वाले सारे लोग एक जगह पे जब रहते हैं। ठीक है। तो ये जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, Ma'am, I have a doubt. यस तरन, Ma'am, in India there was a ruler, Samudragupta, who was the हाँ, founder of the Gupta dynasty. Ma'am, हाँ, he is always compared with Napoleon. Why? क्योंकि क्योंकि समुद्रगुप्त और नेपोलियन जो है ये दोनों एक ही मंशा के थे बेटा। ये लोग अपने टेरिटरीज, अपने रीजन्स को बहुत ज्यादा बड़ा करना चाहते थे, और जितना ज्यादा एक्वायर कर सकते हैं उतना एक्वायर करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करा जाता है। मैम Ma'am, Napoleon never came to India. नहीं, इंडिया नहीं आया नेपोलियन, वो तो अलेक्जेंडर था जो आया इंडिया में। हाँ मैम हाँ मैम मैम बट इट इज नॉट ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम in this world in history, मैम whose empire was the biggest? मैम अलेक्जेंडर, मैम चिंगिस खान और द ब्रिटिशर्स। मैम सबसे बड़ा किसका? नहीं बेटा, सबसे ज्यादा तो चाइना का जो था उसकी बड़ी थी। जो चाइनीज, आप ये देखो, जो चाइना यस रूलर्स थे वो सबसे बड़े रूलर्स कहलाते थे, उनके पास सबसे ज्यादा, मैम सबसे वास्ट एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर मैम किसके पास था? मतलब दोबारा बोलो आप। Ma'am, Genghis Khan. मैम वर्ल्ड में सबसे बड़ा एम्पायर किसका था? मैम चिंगिस खान, अलेक्जेंडर या फिर ब्रिटिशर्स का? अच्छा, मेरे ख्याल से तो मुगल एम्पायर होना चाहिए अगर आप देखो तो। नो मैम मुगल एम्पायर No, वाज no. नॉट द मैम
मैं sometimes checking Google, मैम some show Genghis Khan and मैम some show Alexander. बेटा चंगेज खान तो मंगोल्स के ही तो वो थे भाई, मुगल जो थे चंगेज Yes. खान के ही तो मैम ऑटोमन एम्पायर। ओटोमन Yes, एम्पायर ma'am. में बहुत बड़ा था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ने, अगेन मुस्लिम एम्पायर था वो, ओटोमन एम्पायर ने मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ यूरोप को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। जैसे मुगल्स ने एशिया और साउथ एशिया के पार्ट कंट्रीज को करके रखा हुआ था ना, एशियन कंट्रीज को मैक्सिमम, ऐसे ही ओटोमन एम्पायर ने सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था। आप ये समझो कि ओटोमन एम्पायर का जो कंट्रोल था वो 1900 एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपनी 1914 में हुई है ना, तो आप ये समझ लो कि 1900 के बाद ही उन्होंने जो है अपना कंट्रोल छोड़ा था, और अपना कंट्रोल ऐसे 1909 या 7 के बाद ही छोड़ा था, और उसके बाद छोड़ने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी, आप ये समझ लो। क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स थी, दो यूरोपियन पावर्स बहुत स्ट्रांग थी, बट फिर भी वो इतनी सेग्रीगेटेड थी कि ये लोग बाल्कन स्टेट जो थे, जो जिनको कि यूरोपियन ओटोमन एम्पायर ने अपने कंट्रोल में करा हुआ था, इनको लेना चाहती थी, क्योंकि इनका जो लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, पावर स्पेशली ब्रिटेन हुआ आपका, जर्मनी हुआ आपका, रशिया हुआ, प्रूशिया हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ये चाहते थे कि ये बाल्कन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लें, जिससे कि इनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और ये और बड़े पावर्स बन जाएंगे। और इसी लड़ाई के बीच में, मतलब अपने आप को ज्यादा पावरफुल करने के चक्कर में जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनिशिएट हो गया था इन द ईयर 1914, आपस में लड़ाई करने के चक्कर में। Ma'am, हाँ ma'am, who was Genghis Khan, ma'am? बेटा चंगेज खान मंगोल था ना, हमने Ma'am, that I know, ma'am, that he is the Yes, king of ma'am, he's a Mongol, ma'am. But Mongolian. हाँ ही ma'am, वाज what are other thing about him, ma'am? मंगोलिया से आए थे, ये सेंट्रल चाइना से आए थे टू कॉन्कर इंडिया। बहुत ही क्रूअल, दिल्ली सुल्तान जब थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये आए थे यहाँ पे, और उस टाइम पे इन्होंने जो है बहुत ही, मतलब बहुत ही ब्रूटल इनको माना जाता था, बहुत ही क्रूअल हुआ करते थे ये, मतलब किसी को नहीं बख्शते थे, बच्चे बूढ़े जो इनके रास्ते में आते थे सबको मारते हुए गिराते हुए चले जाते थे ये। इनका मेन मोटिव था टू कॉन्कर लार्ज एरियाज। ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. हाँ Ma'am, some people say, ma'am, that Napoleon came to India, ma'am, he was very inspired from India, ma'am. नेपोलियन Yes, ma'am. Ma'am, Alexander came to India. नहीं बेटा, एलेक्जेंडर आए थे, एलेक्जेंडर बहुत खुश हुए थे। क्यों? क्योंकि चाणक्य, आपको याद है, अगर आपको पता हो तो, जो एलेक्जेंडर था, व्हाइल गोइंग बैक, व्हेन ही वाज गोइंग बैक, उस टाइम पे रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, he was dead by some disease, ma'am. ही वाज डिजीज Ma'am, नहीं he था was बेटा। dead by. हाँ, ही डाइड बिकॉज उनको उसको खाने में, जितने टाइम पे वो यहाँ पे रहा था इंडिया में, मतलब इंडिया पे नहीं, गंगा के उस पे जब ही उधर आ रहा था, पाटलिपुत्र की तरफ थे। मैम पूरे के पास। पोरस नहीं, पोरस तो इनकी सॉरी, पोरस से तो इनकी लड़ाई हुई थी, पोरस को तो इन्होंने बंदी बना लिया था, पर छोड़ दिया था, क्योंकि Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि वो बहुत खुश हुए थे कि ही वाज अ वेरी ब्रेव किंग। वो अपनी लड़ाई हारने के बाद भी ही डिड नॉट लीव हिज दैट रॉयल वाला जो चीज था उसका, मुझे उस याद नहीं आ रहा है किस बैंक पे इसने अपनी फौज को रोक के रखा हुआ था। तो Ma'am, Jhelum. बेटा मुझे याद नहीं है, अभी गेसेस नहीं मारूंगी मैं, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैम ये चेनाब। अच्छा, तो जब वो वहां पे ठहरा हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य और आपका जो ये चाणक्य थे, इन्हें जब पता चला कि भाई अलेक्जेंडर वहां पे आया हुआ है ऐसे ऐसे, तो उन्होंने पता है क्या करा था, चंद्रगुप्त को वहां भेजा और उसके खाने में एक स्लो पॉइजन दिया, जो कि तुरंत इंसान को नहीं मारता है, कुछ समय के बाद इंसान की तबीयत खराब करके उसको मारता है, और अलेक्जेंडर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। यस तरन, यू वांट टू से समथिंग? मैम, वो इसलिए time is होगा over. ताकि उनको पता नहीं चला शायद से। हाँ, नहीं पता चल पाया था बेटा। और जब जो उनके जिन लोगों ने जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वैद्य वगैरह, इवन दे कुड नॉट मेक आउट कि क्या प्रॉब्लम है उनके साथ। उसको बाद में जब वो रास्ते में जा रहा था तो वोमिटिंग हुई, फीवर चढ़ा, और फिर फाइनली ही डाइड।
तरन बताओ बेटा क्या पूछ रहे थे आप?